میں آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر آصف علی زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بھتیجے ہیں، بھائی ہیں، جو بیوروکریسی میں ان کے من پسند ہیں اور سارے کام انہی سے لیے جاتے تھے، پھر وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اب ان کو خوف ہے، ان کو بھی خوف ہے کہ یہ ایک پر اگر گر گیا ہے چھوٹے میاں صاحب کا تو ہم پہ نہ وزن آ جائے۔ تو اگر چیف سیکرٹری بلائے گا اور چیف منسٹر بلا کے ان کو یہ کہے گا کہ آپ سنبھالیں اور آپ کچھ کریں، تو ان کو تو وہ بھی اپنی جان بچانے کے اس میں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم کل کو ارسٹ سے بچ جائیں گے یا ہم سے ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ تو میں اس کو بھی کنڈیم بھی کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پر 10 دفعہ جب جسٹس قیوم نے مجھے سزا دی، اس زمانے کے سپریم کورٹ کے ایک جج نے ریزائن کیا، جسٹس قیوم نے ریزائن کیا۔ اس ٹیپ کو آپ سنیں تو اس میں شہباز شریف کی بھی آواز ہے، مگر ہم نے میجسٹی آف جسٹس، ہم دوبارہ کورٹوں میں گئے، ہم فل بینچ پہ گئے اور وہاں ہم نے جا کے پلیڈ کیا، ہم نے جا کے کیس لڑا اور وہاں سے ریلیف لیا۔ ہم نے کورٹوں کو ریڈیکول کرنے کی کوشش نہیں کی اور آج تک ہم نے کبھی اس پہ کوئی اس قسم کا نان ڈیموکریٹک ایکشن کسی انسٹیٹیوشن کو لڑوانے کی یا اس کو کمزور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انسٹیٹیوشنز جب ختم ہو جاتے ہیں یا ویک ہو جاتے ہیں تو ملک اس میں ویک ہو جاتے ہیں۔ افغانستان آپ کو یاد ہوگا جب 88-89 میں ہم آئے تو وار چل رہی تھی، نجیب اللہ پاور میں تھا، تو وہ افغان سولجرز بھی جو نجیب اللہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور جو ان کی طرف سے طالبان لڑ رہے تھے، آخری بلٹ تک ایک دوسرے سے لڑتے تھے۔ مگر جب وہ کمزور ہو گیا نجیب اللہ، اس کی سپورٹ ختم ہو گئی، تو چوک میں اس کی لاش آپ کو ٹنگی ہوئی نظر آئی اور اس کے بعد اس ملک کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ all the king's horses and all the king's men could not Humpty Dumpty together again۔ یہ انگریزی کی ایک رائم ہے۔ تو بڑی کوشش کی ہے، تو $1 ٹریلین خرچ کر چکے ہیں انٹرنیشنل فورسز پر، ان کی آرم فورسز کا انسٹیٹیوشن وہ نہیں بنا سک رہے۔ اب یہاں میاں صاحب کی کوشش ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ویک کیا جائے، PMLN کی یہ کوشش ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو ویک کیا جائے۔ کبھی کہتے ہیں کہ سینٹ سے ہمیں نکال دیا گیا ہے، سینٹ کے الیکشن سے ہمیں نکال دیا گیا۔ آپ سینٹ کے الیکشن میں ہیں، آپ کی کینڈیڈیچر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے۔ تو میرے پاس میرے ساتھ وہ کھڑے ہیں میرے بھائی، جس کو میں نے لاسٹ ٹائم ایک سیکرٹری جس کو میں نے کھڑا کیا فرام پیپلز پارٹی، میرے پاس اتنے ووٹ تو نہیں تھے پنجاب میں، مگر یہ 2 ووٹوں سے ہارا۔ 2 ووٹ اگر اس کو اور مل جاتے تو یہ جیت گیا تھا، سیٹ نکال گیا تھا۔ اور اس میں بھی شہباز شریف خود آئے، وہاں بیٹھے اور لوگوں کو اوپر فورس کیا گیا کہ وہ ووٹ دکھائیں، اگر لوگوں کو یاد ہو تو، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ سب ایک انسٹیٹیوشنز کے خلاف ریٹرک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عوام کو دوبارہ سے ایک بلاوا دیا جا رہا ہے، اور آف کورس میاں صاحب کے ساتھ جیو ہے اور جیو کے ساتھ جیو کی جو ریٹرک ہے وہ دوسری میڈیا بھی اٹھاتی ہے۔ تو اور وہ کیوں ہیں؟ میاں شکیل دوست تو میرے ہیں مگر ہیں ان کے ساتھ تو کیوں ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا، ان سے بھی کہوں گا بڑی جسے کہتے ہیں کہ عاجزی کے ساتھ، کہ ملک پہ رحم کرو اور کچھ نہ کرو، اس دھرتی پہ رحم کرو جس دھرتی میں ہم نے سب نے مرنا ہے، ہماری آنے والی جسے کہتے ہیں نسلوں نے اس میں دفن ہونا ہے۔
ہم نے بھی چلے جانا ہے, آپ نے بھی چلے جانا ہے. باقی رہ جائے گا اللہ کا نام یا پھر ملک رہ جائے گا اگر ہم نے سنبھالا تو. اگر نہیں سنبھالا تو بہت سے لوگوں کی ہمارے ملک کے خلاف سازشیں ہیں. وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان رہے, میری یہ پاک دھرتی رہے. آپ دیکھیں کہ اب ان کا ٹوٹل فوکس انڈیا کا اور اسپیشلی مودی کا آپ کے خلاف ہے. ہر جگہ وہ مسلمان ملکوں میں بھی مندروں کی اجازت لے رہا ہے, ہر جگہ وہ موو کر رہا ہے, ہر جگہ وہ اپنی انگریس بڑھا رہا ہے. میں کسی کنٹری پہ کمنٹ نہیں کروں گا, وہ ان کے اپنے انٹرنل میٹرز ہیں اور ان کی اپنی ڈپلومیسی ہے, مگر میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے فیلئر کی وجہ سے ہے. اور آپ کا مطلب ہے کہ آج کی حکومت ہر چیز میں ان کی 4.5 سال کی حکومت جو ہے اس کا فیلئر ہے. اس فیلئر کا وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ بہت کوئی زیادہ برائٹ ہے, آپ بے وقوف ہیں. آپ اس جھانسے میں ہیں کہ شاید وہ آپ کا دوست بن سکتا ہے یا اکراس دا براڈ نیا پنجاب آپ بنا سکتے ہیں, گریٹر پنجاب آپ بنا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ہوگا, اور اسپیشلی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم اس پہ قائم ہیں کہ پاکستان ڈیوائیڈ ہو چکا ہے, بن چکا ہے. پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور ہم مسلمان رہیں گے. آپ سب مجھ سے زیادہ لکھے پڑھے ہیں, آپ صرف نیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, اس لیے ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. ایسی کمیونٹیز ہیں جو وہاں ہیں اور اب وہ انہیں سے سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہیں, مسلمان کمیونٹی, کہ وہ شاید وہاں نہ رہیں. کچھ کینیڈا چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں یا پاکستان آ جائیں, وہ وہاں رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے کہ سرکمسٹانسز ان کے لیے جو پاکستان نہرو نے بنایا یا انڈیا نہرو نے بنایا یا گاندھی جی نے بنایا, وہ ایک سیکولر انڈیا تھا. اس وقت ایک ہندوتا انڈیا ہے. تو اللہ رحم کرے گا, مگر ہم تیار ہیں. مسلمانوں کو ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنی تلواریں جو ہیں وہ تیز رکھو, تو ہماری تلواریں تیز ہیں. اگر خدا نخواستہ انڈیا نے ہمارے خلاف اس قسم کی بات کی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. تھینک یو جناب. میاں صاحب یہ ریٹرک ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور عدالتیں انتقامی کارروائی کر رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور عدالتیں میرٹ کے بغیر فیصلہ کر رہی ہیں اور نواز شریف کرپٹ نہیں ہے؟ پہلے تو ہم نے کہا نا کہ میاں صاحب جو ہیں یہ سوائے کمیشن کے, سوائے بزنس کے اور کوئی کام نہیں کرتے. ان 4.5 سالوں میں ان نے نہ پختونوں کو ان کی ڈیو شیئر دیا ہے, نہ بلوچوں کو ان کا ڈیو شیئر دیا ہے, نہ گوادر پورٹ بنایا ہے, اور نہ سندھ کو اپنا ڈیو شیئر دیا, صرف لاہور کو دیا ہے. پنجاب میں بھی آپ جہاں چلے جائیں, ابھی میں گیا تھا توسا شریف, وہاں کی سڑکیں میں دیکھ کے آیا ہوں. میں نے موچی دروازے پہ جلسہ کیا, وہاں بھی میں نے اندرونی لاہور کا حال دیکھا. یہ باہر کے صرف رنگ روڈز ہیں اور یہ ان کے اپنے جو ہزاروں ایکڑ زمین ہے ان کے پاس جو راستے جا رہے ہیں وہی بن رہے ہیں. One from this side, one from this side. فرمائے کہ میاں صاحب کے خلاف جو 2 فیصلے آئے ہیں, وزارت علماء سے گئے, پارٹی صدارت سے گئے, کچھ تجزیہ نگار یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ اس سے لوگوں کی ہمدردیاں میاں صاحب کے حق میں بڑھ رہی ہیں. آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ واقعی میاں صاحب کی ایک چیز. دوسری, پیپلز پارٹی کی پنجاب میں مطلب جلسے تو بہت بڑے ہو رہے ہیں, لیکن لودھرا میں 3000 ووٹ اور کسوم نواز کے حلقے میں بھی 3000 ووٹ
अच्छा सवाल है। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक वो पहला कॉन्स्टिट्यूंसी ले लीजिए जहाँ मरीम नवाज ने काम किया, मेरा ख्याल है उसका बजट कोई 3 बिलियन या 4 बिलियन रुपीस का है, उससे कम नहीं है। 4 बिलियन अगर मिल रहा है, मोटरसाइकिलें मिल रही हैं, रास्ते रातों रात बन रहे हैं। हालत यह है कि अगर गाड़ियां पार्क्ड हैं तो रास्ते बन गए हैं, वो गाड़ियां जहाँ पार्क्ड थी वहाँ रास्ते नहीं बने। लाइटें लग रही हैं, गैस मिल रहा है। जब हुकूमत प्रोविंस भी अपनी है, नेशनल भी अपनी है, तो फिर वोट लेना भी आसान है। इसी तरह लोधड़ा में भी आपने उनको गैस भी दी, उनको बिजली भी दी, हर जगह दी। और पहली बात तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो चेंज हो। डिप्टी कमिश्नर अपने एमएनए के भाई बैठे हुए हैं, कमिश्नर अपने सेनेटर का चाचे का बेटा बैठा हुआ है, एसपी अपने बैठे हुए हैं, एसएचओ अपने बैठे हुए हैं। तो आधे से ज्यादा आपको पता है कि पंजाब में सियासत तो होती भी एसएचओ की है। मैं जब जेल में था तो गवर्नर से अरेस्ट हुआ था, तो जब मुझे लेके जाया करते थे ये पुलिस के हमारे दोस्त, तो मुझे उस दिन कहते हैं कि सर तुसी हैं जी आके बह जानते हो गवर्नर हाउस, ये 2-3 MP तो तुहानू असी दे सकते हैं, ये तो कोई गल ही कोई नहीं। तो ये आलम है वहाँ। आपने ये कहा कि वो जो है ना पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, काम कराया, ये कराया, क्या 88 में BPI उससे 10 साल पहले इन्होंने बड़े काम कराए, 2002 में इन्होंने बड़े काम, पीपल्स पार्टी जीती, 2008 में पीपल्स पार्टी जीती, जबकि ने बहुत काम कराए। क्या आप अपनी पार्टी और अपने लीडरों की परफॉर्मेंस और वो चेक करने की बजाय आप सारी बातें उन पर डाल रहे हैं कि वो बराहत कर रहे हैं? आपकी पार्टी की क्या परफॉर्मेंस है सर? लाहौर में दूसरों बता गिलानी की क्या परफॉर्मेंस है? सर मैं आपसे अर्ज करूं कि ऑडिट ऑब्जेक्शन आ चुका है। आरओज की इलेक्शन जो मैंने कहा था उसका अब ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया है कि आरओज ने बैलेट पेपर्स छपवाए हैं। अब ऑडिट और इलेक्शन कमीशन उसका बिल नहीं दे रहा, चूंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया है, वो उससे ज्यादा हैं जो उनने छपवाए थे और जो उनकी जरूरत थी। तो इसलिए हमने इस 5 साल में बैठ के एक इलेक्शन रूल्स बनाए हैं, इनको साथ मिला के रूल्स बनाए हैं, तो आइंदा ये ना हो सके। बिल्कुल परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं कम होंगी, मैं नहीं कहता कि 100% अगर गिलानी साहब और मेरे साउथ के प्रेसिडेंट वहाँ चले जाते लोधरा में तो रिजल्ट कुछ बेहतर आता, मगर उनकी थोड़ी सी अपनी रिश्तेदारियों की वजह से उन्हें रिफ्रेन किया। तो ये होता है सियासत में। मैनिफेस्टो में क्या आने वाला है जो कौन को अपील करे 2018 के इलेक्शन सर पे, आपकी क्या तैयारी है? सर हमारा मैनिफेस्टो तैयार है। यहाँ हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हैं, शहीद रहमान बैठी है, ये सवाल मैं इनको करने का जवाब आ रहा जी। मैनिफेस्टो का जहाँ तक ताल्लुक है जी, हमारा मैनिफेस्टो तकरीबन कंप्लीट है, मगर मैनिफेस्टो की जो अनवीलिंग होगी या जो रिलीज किया जाएगा मैनिफेस्टो, वो चेयरमैन बिलावल साहब करेंगे। तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि हम बेसिकली इस दफ़ा एक आम आदमी का मैनिफेस्टो ला रहे हैं और सोशल सेक्टर को हम काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और हम ऐसी चीज़ें मैनिफेस्टो में इस दफ़ा ला रहे हैं जो कि एक आम आदमी को हेल्प करेगी, और मैनिफेस्टो जो होगा वो इंशाल्लाह दूसरे मैनिफेस्टो से आप बेहतर पाएंगे। मगर डिटेल्स मैं उसकी देना नहीं चाहता हूँ, वो इसलिए कि वो खुद डिटेल्स चेयरमैन साहब रिलीज करें। लास्ट पे खड़े हैं, लास्ट पे इदारों की तबाही यही है ना इंशाल्लाह। आपने इदारों की तबाही के हवाले से मिसाल दी अफगानिस्तान की, जिस तरह आपने इदारों की तबाही के हवाले से अफगानिस्तान की और नजीब की मिसाल दी है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने भी ऐसी ही मिसाल सोमालिया और कांगो जैसे मुल्कों में दी जो बहुत रिच कंट्रीज हैं मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी भी थी, लेकिन उनके इदारे तबाह है, मुल्क भी तबाह है।
आपका मिसाक जमहूरियत क्या खत्म हो गया है? क्या आप समझते हैं आपके ऐसे कहने से मियाँ साहब इदारों की तबाही रोक देंगे? इसके लिए क्या आपने कुछ सीरियस सोचा? हम जब रिसेंट पास में देखते हैं आप एक मंजे हुए सियासतदान हैं, तो क्या आप समझेंगे मुल्क और इदारों की बेहतरी के लिए कोई आप APC या कोई ऐसा कदम सीरियस उठाएं जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि कोई शख्स पाकिस्तान के इदारे तबाह कर रहा है? सर, इस वक्त मैं इलेक्शन मोड में हूँ। सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं। सेनेट के इलेक्शंस के बाद हम डायरेक्टली इलेक्शन मोड में चले जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कितनी सीटें लेता है, क्या होता है। उसके बाद हम APC की बात कर सकते हैं। साहब, गुज़िश्ता 3.5-4 साल में आपकी सियासत ने एक नई करवट ली है। जिस मकामती ज़रदारी को दुनिया जानती थी, अब वो थोड़ा चेंज हो गया। मुख्तलिफ मोड्स आप आती है, लेकिन एक चीज़ जो सेनेट के इलेक्शन में आपने की है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी की जहाँ पे अक्सरियत नहीं है, जहाँ पे सीट नहीं बनती है, आपने वहाँ पे भी कैंडिडेट दिए। ये थोड़ा सा समझाइएगा कि ये क्या है। इस्लामाबाद में भी आपके कैंडिडेट है, पंजाब में भी आपके कैंडिडेट है, जितनी आपकी अक्सरियत नहीं बनती। सर, आप हमें मुकाबला करने से भी रोक रहे हैं। पहले वही तो मैंने आपको अर्ज किया कि मेरे साथ मेरा एक्स सेक्रेटरी जनरल बैठा है, खड़ा है। वहाँ मेरी सीटें तो नहीं थी, उसके बावजूद सिर्फ 2 वोटों से वो हारा है। ताल्लुकात तो हमारे पॉलिटिकल है ना। अब भी मियाँ साहब ने जो सीटें दिए हैं या इमरान साहब जो दिए हैं पंजाब में, वो ज़्यादातर पॉलिटिकल लोग हैं। तो हमने जो दिए हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं। हमारा शहजाद भी पॉलिटिकल है, उसकी 10 फैमिली से तो वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं। फिर साथ साथ पीरजादा जो है वो खुद एक साउथ से भी है और उसका अपना वकालत में और जुडिशरी में उसका एक मुकाम है। वो प्रेसिडेंट रह चुका है बार का। तो एक पर्सनल कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। साउथ का भी एक इफेक्ट भी होता है। तो इस टेक्निक पे हम सीटें बांटी हैं। KP में जहाँ तक सवाल है, वहाँ हमेशा हमें मौलाना साहब से भी, ANP से भी, दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस से सपोर्ट मिली है और अब भी हम उनसे नेगोशिएशंस में हैं। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा बेहतर। जाफरी साहब नहीं ऐसा होगी। मैं रज़ाक खट्टी हूँ आपका TV से। एक तो कल की इतलात थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी के मार्फत मियाँ साहब ने आपको अप्रोच किया है कि इस बहरान से आप निकालें। एक तो इसका हमें बताएं। दूसरा, ये कहावत हुआ करती थी कि 100 सुनारी थी, उसको तब्दील करने की आपको मुबारकबाद दी जा सकती है? एक तो यूसुफ की बात है, दूसरा ये एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार कहावत को तब्दील नहीं आपको मुबारकबाद दी जा सकती है? इंशाल्लाह। और जहाँ तक यूसुफ भाई का सवाल है, तो उन्होंने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना वो करेंगे। उनने पहले ही बहुत इन पे मेहरबानियाँ की। उन मेहरबानियों का सिला तो ये है कि अब मेरा ख्याल 21 तो रेफरेंस उन पे हैं मौजूदा। 21 रेफरेंसेस उन पे मियाँ साहब ने बनवाए हैं। वो इनकी आदत है कि जो इन पे एहसान करता है उसका ये बड़ा अच्छा सिला उनको वापस देते हैं। मौला अली के मानने वाले भी नहीं है ना, तो इसलिए बात ही ऐसी करते हैं। अच्छा आप ये अभी जो आपने नवाज शरीफ साहब के लिए कहा कि वो इदारों को लड़ा रहे हैं या मुल्क को नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन एक जजिया ये भी आ रहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब तहरीक चला रहे हैं, उनसे अपने कानूनों के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट कर चुके हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट और पार्लियामेंट के हवाले से वो एक परसेप्शन, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनको फायदा हो रहा है। तो आप परवेज मुशर्रफ ने भी कहा था कि अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन हुए तो वो जीत जाएंगे और पीपल्स पार्टी से तक मजबूत होते। बहरहाल ये सोच है और उनकी सोच है। मैं नहीं समझता, जिस तरह मैंने कहा कि इस इस्टेब्लिशमेंट जो बैठी हुई है इस वक्त, वो चीफ सेक्रेटरी से लेके SPs तक, वो तो चेंज हो, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम भी निकलेंगे। अभी हम निकले ही नहीं हैं। जहाँ भी हमने जलसा किया, आपने इस्लामाबाद में जलसा बिलावल साहब का मेरा देखा, तो वो पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। और अब 2 तरफ से
जीटी रोड पे भी हमको ब्लॉक कर दिया गया था और राज साहब आपको भी ब्लॉक कर दिया गया था गुजरफान से। तो ये 2 जुलूस हमारे पहुंच नहीं सके, जो कम से कम 1.5 लाख लोगों का जुलूस था जो ना पहुंच सका। उसके बावजूद आपने देखा कि कितने लोगों का जोश था, जज्बा था और लोगों की एक भुट्टो खानदान के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ प्यार कितना जागा और जगाया है। आप क्या समझते हैं इलेक्शन होंगे? No second question. जाफरी जी नवाब से जिस तरह की इस वक्त पोलराइजेशन है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज और इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, No, between Nawaz Sharif and other people, not political parties. 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान इस वक्त जिस तरह की पोलराइजेशन मैं भी फ्रेम कर देता हूँ और इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बात। I think institutions are quite neutral. ये पहली दफा आपको टोटली न्यूट्रल इंस्टीट्यूशंस मिल रहे हैं जो कि इंटरनेशनली भी आपकी पोजीशंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल पोजीशंस को समझ भी रहे हैं। वरना बॉब वायर आज तक किसी ने 60 साल में लगाने की कोशिश नहीं की अफगान बॉर्डर पे। ये पहली दफा है कि इस आर्मी चीफ ने बॉब वायर लगाने की बात की है और बॉब वायर लग भी रही है और हर दुनिया के महज़ब कंट्री पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है आपके मुल्क में। और एक पुराने ज़माने में भी हम जाया करते थे अफगानिस्तान, जब हम बच्चे थे तो बाय रोड जाते थे, पासपोर्ट दिखाते थे, वो एक लाल कार्ड हमसे भरवाते थे और उसके बाद वापसी में एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड, वापसी में लाल कार्ड ले लेते थे। तो वो हो सकता है इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि हमारे और काबुल के ऐसे ताल्लुकात होंगे कि कोई ऐसा इशू नहीं होगा, पर ये जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज हैं ये सॉल्व हो जाए। जरदारी साहब बताएं कि मौजूदा हालात में 2018 के इलेक्शंस आप टाइम पे देख रहे हैं? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ, शुरू हो गई है सर, मैं देख रहा हूँ, टाइम भी होंगे। हाँ इंशाल्लाह। जरदारी साहब, बलूचिस्तान में अदम एतमाद के बाद कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में भी अदम एतमाद ला रही है। पहली बात और दूसरी बात, पहली बात तो बलूचिस्तान में मैं नहीं लाया हूँ, मेरे पास एक आदमी भी नहीं है। सर गिलगित बल्तिस्तान में कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी अदम एतमाद लाएगी। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबाई सेटअप दिया था, पूरी सेटअप, और कहा जा रहा है कि नून लीग की हुकूमत उसको वापस ले रही है और 2008 वाले सेटअप पे लेके जा रही है। तो इस हवाले से क्या? जी हाँ, उस पर हमें डेफिनेटली कंसर्न है, ऑब्जेक्शंस हैं और गिलगित बल्तिस्तान पे हम किसी और दिन एक तवील आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि उसका क्या नुकसान है। जी जरदारी साहब, बलूचिस्तान में जो तब्दीली हुई आपने उसका क्रेडिट भी किसी हद तक लिया? नहीं, मैंने कहा मैंने दुआ की और उसके बाद नून लीग की जानिब से एक ये कहा यह जा रहा है कि आपके और उनके दरमियान कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और आज आपने तस्वीर से भी जरा सा गुरेज किया। एक तो ये बताएं कि क्या ये ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं? दूसरा एक तासुर ये भी है कि आपकी वजह से बिलावल भुट्टो आगे नहीं आ पाते और एक पार्टी आप है और एक आपके बेटे बिलावल भुट्टो है जो आप चेयरमैन भी है और आप शरीक चेयरमैन है। तो इस हवाले से आपका बेटा कितना बड़ा है? मेरा 12 साल का है और वो भी एक ही और अब्बा है मेरा। फिर सोच ले, जवाब दे आपका जवाब दे सोहेल खान को भी दे। आप सोचें कि बिलावल साहब ने इंटरनेशनल फोरम्स पे जो पाकिस्तान को डिफेंड किया, मैं समझता हूँ ऐसा मैं भी डिफेंड नहीं कर सकता था और पाकिस्तान के हर मौजूद शहरी ने, राइटर ने, हर इंटेलेक्चुअल ने उसको प्रेस किया है। वॉशिंगटन में उसने अपना एक इम्प्रेशन छोड़ के आए हैं, जो वहाँ के प्रेस है और वहाँ की वाशिंगटन की जो वाशिंगटन लॉबीज़ हैं वो भी उसको एक्नॉलेज करती हैं। तो इंशाल्लाह वाशिंगटन में और दुनिया में बिलावल साहब ही आपको इस माहौल से निकालेंगे। दुनिया न्यूज़ से जरदारी साहब ये बताएं कि परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी और आपकी एक और हरीफ जमात है तो मुश्तरका वो टारगेट है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर वो पाकिस्तान आ गया तो सजाद खुद अपने दाम में आ जाएगा, पीपल्स पार्टी क्या करे?
कोर्ट इन एक्शन आएगा ना, लॉ इन एक्शन आएगा। जी जी शफकत अली द नेशन से FM ने ये कहा कि 3 महीने की मेरी ब्रीफ मिल गई FATF से, और दूसरे दिन आपने देख लिया क्या सिचुएशन हुई, तो शुड ही रिमेन द FM, शुड PM कंटिन्यू इन द ऑफिस? मैंने तो पहले दिन कहा था कि आई डोंट थिंक ही सूट्स द जॉब, और अब इस हुकूमत का इनिशिया खत्म हो चुका है। इनकी जो अब प्राइस होती है, एक मिड साइज होती है जो मिडिल में गवर्नमेंट होती है, और एक जाते जाते हुकूमत की डाउन साइज होती है। अब इनकी डाउन साइजेस शुरू हो चुकी हैं। अब ये कोई भी इनिशिएटिव ले नहीं सकते, अब किसी भी बात पे या किसी इनिशिएटिव पे ये करवा नहीं सकते काम, बिकॉज जिससे बात करेंगे उनको पता है कि ये जा रहे हैं। सर आप क्या ये जो FATF का मामला है, इस पे आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस तरह आप इनको प्ले करना पड़ेगा अगर ये डिसीजन ग्रे लिस्ट में आ जाता है पाकिस्तान? मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हमारे दौर में भी ऐसे मौके आए, ऐसा इशू हुआ और हमने उसको फेस किया, और नेगोशिएशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, सब दुनिया के मुल्क हैं, उनको आपने अपना मौक़िफ़ देना है, उनसे बात करनी है, उनको अपने तरफ लेके आके उनके थ्रू नेगोशिएट करके ये आपने वापस ग्रे से आप लाइट में आएंगे। चाबहार को भारत के हवाले किया गया है और पाकिस्तान की फोर्सेस इजाफी गई हैं सऊदी अरब में, कुछ तशवीश है इसमें? चाबहार बेटा, मैं चाबहार मैंने नहीं किया, और आज ही मैंने खबर पढ़ी कि चाबहार इज ओनली फॉर ट्रेडिंग पोस्ट है, और उसके बावजूद काबुल जहां ट्रेड करना चाहते हैं या अफगानिस्तान जहां वो ट्रेड करना चाहते हैं वो हमारे पोर्ट से ज्यादा दूर है। वो तो मैंने पहले भी कहा, नसीब ज़रा के प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि भुट्टो साहब के ज़माने से ये लेगेसी चली आ रही है कि जब भी किसी दोस्त को, जब भी किसी मुसलमान दोस्त को ज़रूरत पड़ी है, और ख़ास करके हाउस साउथ को, जो कि हमारे पुराने दरीना ताल्लुकात हैं उनसे, रोज़ आप सजदा करते हैं तो मक्के की तरफ करते हैं, और उनके कस्टोडियन हैं वो, मैं कैसे उनको कहूँगा कि आप लेट डाउन करें? और हमारी फोर्सेस गई कितनी हैं? 1600 आदमी तो जंग नहीं कर सकते ना, 1600 आदमी तो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो बैतुल मुक़द्दस को संभाल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन फौज तो गई नहीं है ना बेटा, आप 1600 आदमियों को फौज कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है। मुस्लिम लीग नून की जानब से बारहा कहा गया है कि बलूचिस्तान में जो हमारे MPs हैं उनको आपने शायद खरीदा है, इस तरह का शायद। और सेकंड चीज सर कि आम इंतखाबात कैसे आपको होते नजर आ रहे हैं? अभी हल्का बनिया मुकम्मल नहीं हुई, शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन में पहुंचना शुरू हो गई है। सर इमरान खान साहब की शादी के ऊपर तबसरा देखें, इमरान खान साहब का अपना पर्सनल मामला है, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, 3 करें 4 करें, और इतने ताल्लुकात नहीं कि मुबारकबाद दी जाए। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक हॉर्स ट्रेडिंग का सवाल है, तो मियाँ साहब से कौन जीत सकता है पैसों की जंग में? थैंक यू सर, थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मियां साहब, हम आपको ग्रेटर पंजाब नहीं बनाने देंगे और आपको सेनेट इलेक्शन से निकाला नहीं है, आप हैं लेकिन आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से।